FIA نے غیر ملکی کرنسی اسمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کیا ہے اور روپے کی قدر پر مثبت اثر پڑنے لگا ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر ₹1.98 سستا ہو گیا اور قیمت ₹306.98 سے کم ہو کر ₹305 ہو گئی ہے۔ کاروبار کے دوران انٹر بینک میں ڈالر ₹304.50 پر ٹریڈ ہوا۔ جنرل سیکرٹری کمپنیز ایکسچینج ایسوسی ایشن ظفر پراچا کا کہنا ہے کہ ڈالر سستا ہونے سے درآمدی لاگت کم ہوگی، مہنگائی میں بھی کمی آئے گی۔ FIA کا غیر ملکی کرنسی اسمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن تیز، روپے کی قدر پر مثبت اثر پڑنے لگا۔ انٹر بینک میں ڈالر ₹1.98 سستا ہو گیا، قیمت ₹306.98 سے کم ہو کر ₹305 ہو گئی۔ کاروبار کے دوران انٹر بینک میں ڈالر ₹304.50 پر ٹریڈ ہوا۔ جنرل سیکرٹری کمپنیز ایکسچینج ایسوسی ایشن ظفر پراچا کا کہنا ہے کہ ڈالر سستا ہونے سے درآمدی لاگت کم ہوگی، مہنگائی میں بھی کمی آئے گی۔ اسی پر بات کریں گے، اشرف خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اشرف، بتائے گا اس متعلق۔ حکومت کی ہدایت پر FIA نے جو ہے غیر ملکی کرنسی کی جو اسمگلنگ کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کر دیا ہے۔ ملک بھر میں یہ کریک ڈاؤن چل رہا ہے اور پشاور جو ہے پہلے نمبر پر آ گیا۔ 27 کارروائیاں کی گئی ہیں FIA کی جانب سے اور مجموعی طور پر 28 ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اور یہاں FIA حکام کی جانب سے جو بتایا گیا مجموعی طور پر $10.20 کی ریکوری کی گئی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ڈالر کی جو اسمگلنگ کر رہے تھے، غیر ملکی کرنسی بھی اس میں شامل ہے، جس کے بعد ریکوری کر کے ان کو گرفتار کر کے مزید تفتیش جاری ہے۔ اور اس میں یہاں مزید کہا جا رہا ہے کہ مزید نیٹ ورک پکڑا جا سکتا ہے۔ اور سب سے بڑا انکشاف یہ ہوا ہے کہ جو 28 لوگ گرفتار ہوئے ہیں، ان کے جو موبائل فون ہیں ان کو بھی فورنزک کے لیے بھیج دیا گیا ہے اور وہاں پہ یہ دیکھا جائے گا کن کن لوگوں سے وہ کانٹیکٹ میں تھے۔ اس وقت ملک میں سب سے بڑا بحران آیا ہوا تھا کہ ڈالر کی قلت کو جواز بنا کے ڈالر کی قیمتوں کو بڑھایا جا رہا تھا، لیکن کریک ڈاؤن کے بعد تیزی سے ڈالر کی قیمتوں میں کمی ہو رہی ہے۔ اوپن مارکیٹ میں دیکھا جائے 3 سے 4 روز میں ڈالر جو ہے $330 سے گر کر جو ہے $305 $307 تک گر گیا اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ڈالر $300 سے بھی نیچے آ سکتا ہے، کیونکہ کریک ڈاؤن میں مزید تیزی دیکھی جا سکتی ہے۔ یہاں پہ ایکسچینج کمپنیز نے بھی یہ کہا ہے کہ ملک بھر میں یہ کریک ڈاؤن ہوگا، جس میں دیکھا جائے کراچی بھی ہے، لاہور بھی ہے، دیگر علاقے وہاں پہ بھی جانچ شروع کر دی ہے۔ سادہ لباس میں لوگ جو ہیں جانچ کر رہے ہیں کون لوگ ڈالر خرید رہے تھے، کون بیچ رہے ہیں، کن لوگوں نے ہولڈنگ کی ہوئی ہے، کے خلاف مزید کارروائی کی۔ جی ٹھیک ہے اشرف خان، بہت شکریہ آپ کا۔ FIA نے غیر ملکی کرنسی اسمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن کیا ہے اور اب یہ کریک ڈاؤن میں تیزی آ گئی ہے کیونکہ روپے کی قدر پر بھی اس کے مثبت اثرات پڑنے لگے ہیں۔ انٹر بینک میں ڈالر ₹1.98 سستا ہوا ہے اور قیمت ₹306.98 سے کم ہو کر ₹305 ہو گئی ہے۔ کاروبار کے دوران انٹر بینک میں ڈالر $304.50 پر ٹریڈ ہوا۔ اس حوالے سے جنرل سیکرٹری کمپنیز ایکسچینج ایسوسی ایشن ظفر پراچا کا کہنا ہے کہ ڈالر سستا ہونے سے درآمدی لاگت کم ہوگی اور مہنگائی میں بھی کمی آئے گی اور اس کے باعث جو ہے عوام کو بھی ریلیف ملنے کی بھی امید ہے۔ بہرحال اب یہ کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا ہے FIA کی جانب سے اور غیر ملکی کرنسی اسمگلنگ کے خلاف یہ کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ اس کریک ڈاؤن کے روپے کی قدر پر مثبت اثرات پڑنے لگے ہیں۔ کاروبار کے دوران انٹر بینک میں ڈالر $304.50 پر ٹریڈ ہوا ہے۔ ڈالر کی قدر میں بھی کمی دیکھی جا رہی ہے، $1.98 سستا ہوا ہے اور $305 اس کی قیمت ہو گئی ہے۔ چیئرمین فاریکس ایکسچینج ایسوسی ایشن آف پاکستان ملک بوستان نے کہا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ 1 سال بعد اوپن مارکیٹ کا ریٹ انٹر بینک سے نیچے آیا۔ ڈالر کی قیمت میں کمی کا تمام تر صحرا آرمی چیف کے سر ہے۔ سپلائی بحال ہونے کی وجہ سے ڈالر وافر مقدار میں ہے۔ اللہ کا شکر ہے ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ تقریباً 1 سال بعد انٹر بینک کا ریٹ فری مارکیٹ کا ریٹ انٹر بینک سے بھی کم ہوا ہے۔ یہ بڑا اللہ کا کرم ہو۔ میں سب کا کریڈٹ چیف آف آرمی اسٹاف جناب آصف منیر صاحب کو جاتا ہے، جنہوں نے بڑی ہمارے کہنے پہ کریک ڈاؤن کیا اور ٹاسک فورس بنائی اور جتنی بھی بلیک مافیا تھی بلیک مارکیٹ والے، جو کہ ہم نے بتایا کہ وہ ایکسچینج کمپنی کے بڑی مارکیٹیں ہیں اور شاپ کے باہر کھڑے ہو جاتے ہیں، جو بھی کسٹمر ہے اس کو گھیر کے لے جاتے ہیں اور اس سے پوری انہوں نے کرنسیاں لے لیتے ہیں اور زیادہ آفر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے انٹر بینک کا فری مارکیٹ کا فرق جو تھا وہ $30 تک چلا گیا۔ تو وہ ہمیں انہوں نے کہا کہ ان کے خلاف اگر ایکشن ابھی بھی نہیں لیں گے پھر کب لیں گے، اور یہ تو پاکستان کے لیے ناسور بن گئے اور پاکستانی روپے اور معیشت کو نکل جائیں گے۔ تو انہوں نے بڑی مہربانی کی، فوراً ٹاسک فورس بنائی۔ پچھلے 3 دن سے سول کپڑوں میں لوگ گھوم رہے ہیں
वो रक्की कर रहे हैं, और जिसकी वजह से जितने भी माफिया कुछ पकड़े गए हैं, कुछ भाग गए हैं, अंडरग्राउंड हो गए, तो इसकी वजह से सप्लाई बहाल हुई है। जो 90% इनके पास थी, आज 100% हमारे पास है। ये पिछले 2 दिन से हमने तकरीबन कोई $10 मिलियन कल दिए थे, आज भी इंशाल्लाह $10 मिलियन अभी तक दे चुके हैं, और पब्लिक बड़े पैमाने में देने आ रही है। और हम सारे इंटर बैंक में सेल के, और इस वक्त इंटर बैंक रेट जो कि 307 से कम होकर पहली दफ़ा 305 पे आया पिछले 2 महीने में, पहली दफ़ा कम हुआ इतना। कराची में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। कोरंगी नंबर 2 में बिजली बंदिश से मकीन परेशान है। कहते हैं 15 घंटे तक की लोड शेडिंग ने निज़ामी ज़िंदगी को मफलूज करके रख दिया है। मज़ीद जानेंगे सबा परवेज़ की इस रिपोर्ट में। शहरी कायद में बिजली की अदम फराहमी का सिलसिला बढ़ने लगा। शहर के बेशतर इलाकों में कई घंटों की लोड शेडिंग जारी। आगरा ताज, बिहार कॉलोनी, भीमपुरा, ओल्ड सिटी एरिया, केमाड़ी, कोरंगी और रंगी में 8 से 10 घंटे की बिजली की बंदिश मामूल बन गई। कोरंगी नंबर 2 में 15 घंटे की लोड शेडिंग ने मकीनों की जिंदगी अजीरन कर दी। 10 बजे से 11:30 बजे तक, फिर दोपहर को 2 बजे से 3:30 बजे तक, फिर शाम में 5 बजे से 6:30 बजे तक। बिल बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। इलाके मकीन कहते हैं कि बिजली की अदम फराहमी से बहुत परेशान है। बिजली आती नहीं, लेकिन भारी भरकम बिल भेज दिए जाते हैं। कम से कम 12-14 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है यहाँ पे रोज़ाना की बुनियाद पे, और बिल भी बहुत आ रहे हैं। कम से कम एक कमरे का ना 10-12 हज़ार रुपये का बिल आ रहा है, एक कमरे का जो बंदा दे रहा है, तो बहुत बिल आ रहे हैं तकरीबन यहाँ पे। शहरियों ने इलाके में जारी लोड शेडिंग से निजात दिलाने की अपील की है। रावलपिंडी में शहादा करबला के चहलम का जुलूस बरामद होकर मुकर्ररा रास्तों पर गामजन है। जुलूस इस वक्त कहाँ है, जानेंगे अपने नुमाइंदे इरशाद कुरैशी से। पिंडी में शोदाए करबला के चेहलम के सिलसिले का जो जुलूस है वो बरामद हो चुका है। इमाम बारगाह आशिक हुसैन तेली मोहल्ला से इस वक्त जुलूस जो है कमेटी चौक में मौजूद है, जबकि दूसरी जानिब जुलूस जो है कर्नल इमाम बारगाह मकबूल हुसैन से भी बरामद हो चुका है। तकरीबन 6 जुलूस जो है इस मरकज़ी जुलूस में शामिल होंगे, और उसके बाद ट्रंक बाज़ार में इससे गुजरता हुआ जब जुलूस फवारा चौक पहुँचेगा तो वहाँ पर नमाज ज़ोहरैन अदा की जाएगी। राजा बाज़ार जामा मस्जिद रोड से जो है जुलूस जिस तरह ताख़ीर से बरामद हुआ है, ये इमाम बारगाह कदीम जाकर तकरीबन रात 12 बजे जो है इम्कान है कि इख्तिताम पजीर होगा। जबकि जुलूस की सिक्योरिटी जो है काफ़ी ज़्यादा सख्त की गई है। रावलपिंडी पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है। इस वक्त कमेटी चौक जो है जो फ्लाई ओवर है उसको बंद कर दिया गया है। अंडर पास से जो है ट्रैफिक रवा दवा है, जबकि दूसरी जानिब फवारा चौक, राजा बाज़ार, जामा मस्जिद रोड तमाम जो है रूट को सील किया गया है। और दाखिली और खारजी रास्ते जो है वो कमेटी चौक और फवारा चौक में, जहाँ पर जामा तलाशी के बाद जो अज़ादारों को जुलूस में जाने की इजाज़त दी गई है। एक कैमरे जो हैं इस जुलूस की सिक्योरिटी के लिए लगाए गए हैं, जिनका कंट्रोल रूम जो है वो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस में रखा गया, और वहाँ पर भी जुलूस की मॉनिटरिंग की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया आपका। चेहलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मौके पर कराची के मुख्तलिफ इलाकों से अज़ादार काफिलों की शक्ल में अरबैन वॉक करते हुए शारा फैसल से मरकज़ी जुलूस की जानिब रवां दवा हैं। अज़ादारों का कहना है कि अरबैन वॉक को सफ़रे इश्क कहते हैं। जो लोग करबला नहीं जा सकते वो यहाँ अपने घरों से पैदल जुलूस में शिरकत करके मोहब्बत का इजहार करते हैं। मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे ताहा मलिक से। ताहा, आगाह कीजिएगा। टूट गया कोई मर्तबा ना मिला, सितम के बाद भी कोई हासिल जफा ना मिला। सरे हुसैन मिला है यजीद को, लेकिन शिकस्त ये है कि झुका हुआ ना मिला। जी बिल्कुल, आज हज़रत इमाम हुसैन की शहादत के चहल्लुम के मौके पर जहां शहर भर में मजालिसें का एहतमाम किया जा रहा है, जुलूस निकाले जा रहे हैं, वहीं शारा फैसल पर भी अरबईन वॉक करते हुए बड़ी तादाद में अज़ादार जो है वो मरकज़ी जुलूस की तरफ गामजन है। यहाँ पर यही बात भी बताई जाने वाली है कि शारा फैसल पर मुख्तलिफ मकामात पर सबीलों का भी एहतमाम किया गया है, जहाँ पानी, शरबत और तमाम का भी एहतमाम किया गया है, ज़ायरीन के लिए किया गया है। यहाँ पर आज चहलुम के मौके पर एक मैसेज देना चाहूँगा कि हमें हज़रत इमाम हुसैन की शहादत से क्या मैसेज मिलता है। हमें यही मैसेज मिलता है कि अगर दीन की खातिर सर कटाना हो तो सर कटाने से हमें परे नहीं होना चाहिए और हमें सर कटा लेना चाहिए। इंसान को ज़रा बेदार तो लेने दो, इंसानियत पुकारेगी कि हमारे हैं या हुसैन। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के मौके पर रिवायती दूध की सबील जारी है। दूध की सबील पर शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद है। उर्स के तीसरे रोज़ भी ज़ायरीन में हज़ारों मन दूध तकसीम किया जा रहा है। लाहौर से दिलावर न्याजी तफसील बताएंगे। जी दिलावर।
हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के 980वें उर्स की तकरीबात का सिलसिला जारी है और इसी के साथ साथ जो रवायती दूध की सबील है वो भी जारी है। इस वक्त हज़ारों की तादाद में जो ज़ायरीन है, जो अकीदतमंद हैं, वो यहाँ से दूध जो है वो उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। बहुत अच्छे अंदाज में पैकिंग के साथ यहाँ पर जो है दूध लोगों में तकसीम किया जाता है। लोगों की एक बड़ी तादाद जो है इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। हमारे साथ इंतज़ामिया मौजूद है दूध सबील की, उनसे बात करते हैं, मज़ीद उनसे जानते हैं। जी मुझे बताइएगा कि कितने मन लीटर जो है दूध इस वक्त तकसीम कर दिया गया है और आज कब तक ये तकसीम किया जाएगा? तकरीबन हज़ारों मन तकरीबन तकसीम कर दिया गया है। आज कल सुबह 3-4 बजे तक जारी रहेगा इंशाल्लाह। यहाँ पर मौजूद जो इंतज़ामिया है उनकी गुफ्तगू आपने सुनी कि 3 रोज़ के लिए ये जो है सबील का अहतमाम किया जाता है और आज भी जब तक रात को दुआ इख्तितामी नहीं होगी तब तक ये सबील का सिलसिला जारी रहेगा। मेरा कैमरामैन खालिद मलिक आपको दिखा सकता है कि ये पैकिंग की बाकायदा मशीन लगाई गई है जहाँ से दूध जो है पैकेट में पैक होकर आगे पहुँचता है और जो लोग हैं उनमें इस दूध को तकसीम किया जाता है। लोगों की एक बड़ी तादाद जो है इस वक्त भी मौजूद है दूध हासिल करने के लिए यहाँ पर आए हैं। लंगर का सिलसिला जो है वो भी जारी है यहाँ पर और इसके साथ साथ दूध के साथ साथ ना कि सिर्फ दूध की सबील जो लंगर है उसका भी एक वसी इंतज़ाम यहाँ पर किया गया है। जो यहाँ की इंतज़ामिया है उनका कहना है कि रात जब तक इख्तितामी दुआ नहीं होगी तब तक ये दूध की सबील का सिलसिला जारी है। बहुत शुक्रिया आपका।